Hello students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So we start with our workbook exercise, okay? Page number 29. See song, okay? Okay. Now let's start with our question answers part first, page number 29. Page number 29, question answers, question number 1. Where did the child find the seashell? Answer, the child found the seashell on the sand. Okay. Next, second one, what did the child do with the shell? Answer, the child took the shell to his home. Number 3, you don't have to write. Number 4, what did the child hear? Answer, the child heard a soft, sweet and clear song from the shell. Again I am repeating, fourth one answer, the child heard a soft, sweet and clear song from the shell. Number 5th, why was the child surprised? Answer, the child was surprised because he heard the song from shell. Okay. Now next exercise, exercise number 2. Write the correct option A, B, C or D in the box. First one, where do you find shell? Answer, number B, seashore. B पे टिक करो, बॉक्स में लिखना है आपको नंबर B. जैसे जैसे आप यहाँ पे टिक करते जाते हो बॉक्स में वो आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं. ओके. नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड? आंसर C, shell. थर्ड वन, द शेल वॉज नंबर D, कर्ली. तो आपको D पे टिक करना है. फोर्थ वन, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शेल? आंसर A, ऑन दी सैंड. नंबर 5th, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? आंसर B, टुक इट होम. नंबर 6, व्हाट डिड द मम्मी डू विद द शेल? आंसर C, held it to the child's ear. 7th one, what did the child hear? Answer D, a song. Okay, turn your page, page number 30. Question number 8, the song was? Answer A, soft, sweet and clear. Number 9, what did the child feel on hearing the song? Answer, number B, surprised. Number 10, which word in the poem rhymes with hand? Answer C, sand. 11th one, which word in the poem rhymes with ear? Answer B, clear. Number 12, which word in the poem rhymes with true? Answer A, two. Okay, now come to the next exercise number 3. Write the opposite of the given words. Okay, first one, took. Answer, gave. Second one, hard. Answer, soft. Inside, outside. Came, went. Came है इसलिए went आया, कम होता तो go आता. ओके. फिफ्थ वन, pick. तो ड्रॉप. पिक यानी उठाना, ड्रॉप यानी नीचे आप कैसे कुछ गिरता है उसे हम ड्रॉप कहते हैं. ओके. 6th, फॉल्स. तो ट्रू. बिटर, स्वीट, स्ट्रेट, कर्ली. ओके. नाउ राइमिंग वर्ड्स. एक्सरसाइज नंबर 4, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट वन, बाउंड. तो फाउंड, साउंड, सराउंड. ओके. सेकेंड, ट्रिक. पिक, निक और स्टिक. थर्ड वन, लैम्प. सेम, केम, नेम. फोर्थ, शुक, बुक, लुक एंड टुक. फिफ्थ वन, लैंड. सैंड, हैंड, स्टैंड. ओके. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसे रीड करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. ओके. सो फिफ्थ वन,
in the heart of a seed, buried deep, so deep. A dear little plant lay fast as sleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. Okay, now come to the fill in the blanks. First one, the seed is buried, dash into the ground, answer deep. Second, a dash lay asleep inside the seed, answer plant. Third, the dash asks the plants to creep to the light, answer sunshine. Fourth one, the raindrop asks the plants to dash, answer wake up. Fifth one, the word dash rhymes with light, answer bright. Okay, now student number 6, exercise number 6 is your homework. Write the sound of the birds, animals and things. आपको birds, animals के sounds लिखने हैं. ओके, नेम्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, एनिमल्स और बर्ड्स के और थिंग्स के नेम्स यहाँ पे दिए हैं 16. आंसर भी ब्रैकेट में दिए हैं, आपको खुद से ये फिलअप करने हैं. ओके, डू बाय योर सेल्फ. ईजी है, सो आपको खुद को ये करना है, ये आपका होमवर्क है. ओके, नाउ राइट डाउन दी हार्ड वर्ड्स. टेक आउट योर नोटबुक. Now student, you have to write hard words. Okay, put the heading over there. First chapter name, sea song. Okay, unit 4 sea song, and then write down hard words, and down you have to write number 1. Okay, write first one is sea, second song, third curly, fourth sand, fifth straight, sixth round एंड 7th शेल. ओके, सारे इजी वर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ में आए. फर्स्ट वन है सी यानी समुद्र, सॉन्ग यानी गाना, कर्ली जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सैंड यानी मिट्टी, स्ट्रेट जो यहाँ पे फिर से मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया, राउंड यानी सर्कल जो शेप में होते हैं, एंड शेल यानी शंख जिसे हम कहते हैं. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विथ आवर हार्ड वर्ड्स. नाउ स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स, देन यू हैव टू राइट ऑपोजिट जो हमारे वर्कबुक में है, एक्सरसाइज नंबर 3 जो हमारे ऑपोजिट है, टोटल 9, वो ऑपोजिट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. फिर आंसर द फॉलोइंग. ओके, ये थ्री थिंग्स ही आपके बुक्स में होनी चाहिए. सबसे पहले हार्ड वर्ड्स, देन ऑपोजिट एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके, हमारा ये आंसर मैंने आपको नहीं लिखा है, तो टोटल 4 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे आपके. क्लियर स्टूडेंट? MCQs और फिल इन द ब्लैंक सब आपके टेक्स्ट बुक में है, सो आपको नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. Okay, now take out your textbook, page number 38, textbook page number 38, new chapter. A little fish story. A little fish story यानी एक छोटी सी फिश के बारे में ये स्टोरी बताई गई है. ओके, फर्स्ट मैं पैराग्राफ रीड करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now ये जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है? एक छोटी सी फिश के ऊपर है. ओके, एक समुद्र के अंदर तो बहुत सारी फ़िश होती है, मिलियंस नंबर पे फ़िश होती है. ओके, तो उसमें से एक छोटी जो फिश है उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है. ओके, now this little fish had everything in the sea to make him a connected, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. अब ये स्टोरी में ये बताया गया है कि ये जो फ़िश आपको दिखाई दे रही है, ये फ़िश कैसी सैड आपको दिखाई दे रही है, रोती हुई. तो ये फ़िश के पास सी में सारी चीज़ होती है, यानी समुद्र में उसके पास सारी चीज़ होती है, फिर भी वो खुश नहीं होती है, यानी हैप्पी नहीं है. क्यों हैप्पी नहीं है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए वो खुद को अच्छा फील नहीं करती है, वो बहुत अनहैप्पी रहती थी. ओके, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only a longer, larger, how much happier I could be.
and he said it so many times that I think he believed it. Now ये पैराग्राफ में ये बताया गया है स्टूडेंट कि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, ओके, और वो क्या सोचती थी, अगर मैं बहुत बड़ी होती तो मैं बहुत खुश होती, ओके, और वो चीज़ को वो बार बार वो रिपीट करती थी और उससे ही वो बिलीव करती थी। बिलीव्ड यानी उससे ही वो मानती थी, ओके, कि अगर वो बहुत बड़ी होती तो वो बहुत खुश होती। One day he was swimming along with the rest of his schools and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for them. When suddenly, with no warning, they found themselves in the mesh of the great net. Now, एक दिन क्या होता है, उन स्कूल यानी वो सब साथ में एक साथ सारी फ़िश वहाँ पे स्विम कर रही थी, ओके, जो बड़ी बड़ी फ़िश थी वो भी उनके साथ स्विम कर रही थी। तो एकदम से उन्हें जो नेट होती है वो उन पे किसी ने डाल दी, विदाउट वार्निंग, यानी बताए बिना उनके ऊपर एकदम से जो नेट है वो उनके ऊपर आ जाती है और यहाँ से वहाँ फ़िश होने के बाद उसके लिए वो नेट के अंदर वो सारी फ़िशें फंस जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में बताई गई है जो बड़ी बड़ी फ़िश है वो कैसे अंदर फंस जाती है, ओके। There was much foundering and the slapping as the net was drawn up out of the water into the sunlight and just as its holes was being. Now, student, there was much foundering. Foundering यानी छटपटाना, जो पानी में कैसे वो यहाँ से वहाँ छटपटाते। आप देखा है आपने कभी फ़िश को, आप थोड़े से भी उनके पानी को भी आप टच करोगे तो फ़िश वहाँ पे अंदर छटपटाने लगती है। तो वैसे ही जब वो नेट उसके अंदर आती है तो ये जो सारी फ़िश थी वो यहाँ से वहाँ जाने लगी और वहाँ पे छटपटाने लगी, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Empty into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and sifted back into the cool, clear water. How good it felt. अब क्या होता है, जब सारी फ़िश यहाँ से वहाँ छटपटाने लगती है, नेट के अंदर सारी फ़िश फंस जाती है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट फ़िश है यानी जो फ़िश थी सबसे छोटी, वो इजीली वहाँ से बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि वो नेट के अंदर जैसे वो इजीली बाहर आ सकती थी। अगर वही फ़िश बड़ी होती तो वो बाहर आ सकती थी? नो, ओके। नाउ नेक्स्ट, ही स्वैम हर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. अब वो क्यों बच गई? वो इसलिए बच गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर वो बड़ी फ़िश होती तो वो उसके अंदर फंसी रहती थी, ओके। तो वो फ़िश कभी वो उसने दोबारा फिर से नहीं कहा कि काश मैं अगर मैं बड़ी होती तो अच्छा होता, ओके। सो यही ये चैप्टर में बताया गया है कि ये जो फ़िश है वो पहले बहुत खुद को फील करती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं पानी में वो अच्छे से वो खुश नहीं रहती थी। जब ये इंसिडेंट उसके साथ बनता है कि वो नेट एकदम से कोई अंदर डाल देता है और जैसे ही सारी फ़िश अंदर फंस जाती है, वैसे ही ये सबसे जो छोटी सी फ़िश थी वो इजीली बाहर आ जाती है, ओके। सो हियर वी एंड अप विथ अवर चैप्टर, ओके। इन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स कंप्लीट करवा दूँगी, ओके स्टूडेंट। टिल दैट टाइम रीड दिस चैप्टर, okay।